आप सबको नमस्ते. So we had a word about these three phases last time, right? So when you're preparing at this time, right? आपका सबसे बड़ा asset क्या है? What do you think is your biggest asset? I'll tell you a very simple story, right? When Boris Becker, one of the German player, entered the arena of tennis, right? The problem was that his serve, nobody was able to predict कि वो किस तरफ जाएगी. If you happen to play tennis में there are two ways to serve. One is at the angle of the court and second is in the center line. इधर या उधर, right? First serve. Second serve में problem नहीं होती because speed बहुत कम होती है. But he had the most accurate serve. मतलब उसकी first serve fault होती नहीं थी. Average first serve in is 85%, his was 99%. So आपको first serve अगर pick करनी है तो you have to be very well placed on the right and left foot. But it was not predictable वो किस तरफ serve करेगा. So the moment he entered, he defeated Andre Agassi in the first match. Andre Agassi was he was from US and was world number 1 at that time. For somebody just to come at a very young age and finish off such a player, Americans के साथ problem ये होती है कि उनको Germans वैसे ही पसंद नहीं है. Because Germans are more progressive and more intelligent, more sharp. So Andre Agassi, every tennis match, everything is recorded with different cameras. हर मैच रिकॉर्डेड होता है. And if you are playing that match, you have the right to get the recordings for you. You can't challenge it कि क्वेश्चन उस टाइम पे गलत हो गया, उसका आउट हो गया, इन हो गया, but you can get it. So Andre Agassi was defeated and then he right took the CD with him and he disappeared for hours and days to assess. He lost a Grand Slam at being number 1. Next 9 matches which Andre Agassi met Boris Becker, he defeated all of them. He won all of them. So after many years, Boris Becker went to Andre Agassi and asked that what was it that you could defeat me in all Munich में ना, if you happen to make some money. एक October Fest होता है, beer festival. So go and see that. You should see that. You should see the world. Books will educate you, but traveling the world will open your eyes कि आप कहाँ हो. और अगर कभी भी तुम्हें लगे तुम बहुत बड़े हो तो थोड़ा ज़्यादा घूमना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम दुनिया में घूम करके उड़ जाओगे, कोई पूछेगा भी नहीं. जिनको लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ गाड़ रखा है, उखाड़ रखा है, राइट? सो किसी समुंदर के सामने खड़े होना. दैट्स व्हाई शाहरुख खान परचेज द हाउस राइट इन फ्रंट ऑफ द सी. ही सेज व्हेन आई सी एवरी डे आई रियलाइज कि मैं कुछ ना हूँ, राइट? सो ही आस्क्ड कि भाई हाउ यू वर एबल टू डिफीट मी इन द नेक्स्ट गेम्स. सो ही सेड आई सॉ योर सीडी फॉर 4 hours. So when I saw your CD for 4 hours, I realized a very different thing in you. So he said, what was so different? Because I always used to go back and tell, as if this man is able to read my mind. अपनी wife को बोलता था, right? Boris Becker. I don't know, nobody in the world is able to judge my serve, but he's there. And he's always there when he needs a point. He just controls, कि कब जीतना है, कब हारना है. Right? So he said, I saw a very simple thing in you. When you were serving down the center, your tongue will pop out straight. And if you're serving on the angle, it will go to the left. I observed it after 4 hours of watching all your CDs. So I realized your foot was always going in the same direction. Your racket angle was the same. Your grip was the same. Your little finger was the same. Your thumb was the same angled. It was just the tongue which I had to watch. So I was not reading your brain, I was reading your tongue. Right? So he said, why you did not win all the matches? Because otherwise you would have known that I know it. I was only winning the important points. So I was making sure that I was letting go some of the points. You don't have to. Tennis is the only game where you can be on the winning side in spite of losing more number of points. When I saw the final last year between Sinner and Alcaraz, right? And when Sinner lost that match to Alcaraz, Sinner had won 56% of points.
So he had one more number of points, but he was not the champion because more crucial points were won by Alcaraz. So that's what you need to understand. So this time, what you have in your hand, right? The difference between the last 5 days and now the progress going on. Yeah, you have the key hours in the day, which you have to always win. And there are times which you can lose. मैं एग्जांपल देता हूँ. जब आप सुबह उठते हो, वो बहुत क्रूशियल टाइम है, राइट? जब इवनिंग में आपने एक कॉफी चाय ले ली होती है, उसके बाद जो आपका टाइम है बहुत क्रूशियल टाइम है. सो यू हैव टू बी वेरी श्योर एंड वेरी सिलेक्टिव कि आप किस हफ्ते के किस दिन इन क्लास के डिफरेंट फेजेस, एक दिन वीडियो चल रहा है, एक दिन डाउट सॉल्व हो रहा है, एक दिन टेस्ट हो रहा है, आप इस स्केड्यूल के साथ अपने आप को कैसे पेस करते हो. बिकॉज आपको पता है कि आपके पास तो वॉकिंग पाथ है ना. दिस इज व्हाट आई से. शीशी रविशंकर जी के ऊपर एक सचिन लिमाय ने एक लाइन लिखी है, हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हारे कदमों के निशान मिल गए हैं. सो यू जस्ट हैव टू वॉक ऑन द लाइंस विच हैव बीन ड्रॉन फॉर यू. दैट्स इट. सो यहाँ पर की डिटरमाइनिंग फैक्टर सिर्फ यही रहेगा, दैट यू विन द स्पेशल आवर्स. You can't win the entire day. Nobody can be at the peak of energy in the whole day. You can only be at the peak on the important hours. That is very, very important for you. Right? So, you need to understand. आप 12 घंटे 14 घंटे ढंग से नहीं पढ़ सकते, बट आपको 14 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा सिलेक्ट होने के लिए. अगर आप उससे कम यहाँ पे रह के पढ़ रहे हैं तो आप अपने से गलत कर रहे हैं, और आपको वो नंबर ऑफ आवर्स मैक्सिमम यहीं पे निकालने हैं. दिस प्लेस ओपन एट 6:30, closes at 9:30. You have 15 hours. 1 घंटे में आप कितने भी भीड़ से उड़ो, कहीं ना कहीं खाना वाना खा सकते हो यहाँ पे. सो आप यहाँ पे 14 घंटे पढ़ सकते हो. उसके बाद आप तमीज से जाओ, सो नहा धो के सुबह आके फिर वापस आ जाओ. और इसी तरह से जो पूरे हफ्ते का स्केड्यूल है उसमें अपनी पीक को निकालो. दैट इज वॉट यू आर सपोज टू डू एट दिस टाइम. सो द बिगेस्ट एसेट दैट यू पीपल हैव एट दिस टाइम इज you have time in your control, and that is what wins or loses everything in life. आपको इस समय अपनी टाइम की कीमत करनी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको बड़े सरप्राइज होगा. आई केम हियर एट 3:07 and I was sitting with Zainab and I just realized, a very, very important thing. वो अभी भी आपके लिए पढ़ रही थी. When I saw her studying in 2015 for her entrance, the zeal is still the same. So it's not easy to become what you become in life. अगर तुम्हें ये लगता है कि इस एंट्रेंस को क्लियर करके तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो तुम गलत सोच रहे हो. तुम्हें और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा. लोगों को लगता है कि रेडियोलॉजी और डर्मा में पढ़ाई कम है. आई थिंक दे आर द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन. तो डर्मा सोच के उठाना, वो टॉप रैंक उठाते हैं लोग, पर बतेरी किताबें हैं. लोगों को लगता है ही क्या, व्हाट्स इन द स्किन, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का. सो टाइम को मैनेज करना ही आर्ट है ज़िंदगी में, और जो अपने टाइम को मैनेज कर गया वो सब कुछ कर गया. इस टाइम के मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है. जब यहाँ पे 1500 से 2000 बच्चे हर रोज डिफरेंट डेज पे डिफरेंट होते हैं. हाउ टू अवॉइड द क्राउड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड द क्राउड. तुम्हारे को अपने इस महत्वपूर्ण टाइम में अपना काम नहीं खोना. लोगों के अंदर एक रिवर्सल है इस दुनिया में. लोगों का दिमाग बहुत गर्म है और दिल बड़ा कूल है. इसको उल्टा कर लो. दिमाग तुम्हारा शांत होना चाहिए अगर तुम्हें बड़ा गेम खेलना है तो, और अगर जीतना है तो दिल में आग होनी चाहिए. सो इसी के ऊपर ये सेइंग है गुरु ग्रंथ साहिब की, जो कहती है, तेरी किस्मत दा लिखा तेरे तो कोई खो नहीं सकता. सो आई वेंट टू मुंबई लॉन्ग बैक. तो वहां पर एक लड़का था प्रशांत पाए. उसने मुझसे पूछा कि सर आज से 20 साल बाद मेरी जिंदगी में क्या नहीं होना चाहिए. आज से 20 साल बाद मेरी जिंदगी में क्या नहीं होना चाहिए. तो मैंने कहा प्रशांत, एक सिंपल क्वेश्चन पूछ ले. कहता था ऑर्थो भी तो टफ है, आप लोग कौन सा सिंपल क्वेश्चन पूछते हो एग्जाम में. सो एक सिंपल क्वेश्चन पूछ ले. कहते नहीं सर 20 साल बाद क्या नहीं होना चाहिए. मैंने कहा ये पूछना 20 साल बाद होना क्या चाहिए. 20 साल बाद जिससे आप चाहते हो होपफुली शादी हो जाए, और उसी के साथ 1 या 2 बच्चे हो जाए, घर में शांति हो, माँ बाप के साथ थोड़ी बहुत दुनिया घूम लो, वो घुमा दें आपको, आशीर्वाद हो. रोज सुबह यू हैव अ कपल ऑफ फीट टू टच,
एंड यू हैव 2 फ़ोन नंबर्स, इन पे आप कॉल करो दोनों फ़ोन उठाएं. मेरे पास ये नहीं है, बट स्टिल आई विश आप में से हो, राइट? कि आप रोज़ अपने पापा को कॉल करो तो पापा उठाए, मम्मी को करो तो मम्मी उठाएं. मेरे पापा का फ़ोन तो मेरे घर के बाप, मेरी बेटी उठाती है, वो नंबर वो यूज़ करती है. सो हमें कभी रियलाइज़ नहीं होता कि हम किस चीज़ को दौलत माने, किसको ना माने. आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस ऑल माई कार्स एंड ऑल माई प्रॉपर्टी फॉर इफ आई गेट टू स्पेंड अ डे विद माई डैड. आई थिंक दैट विल बी मोर वर्थ इट, बट होता नहीं है ना, हम इंसान हैं. सो मैंने कहा माँ बाप का आशीर्वाद तुम पे बना रहे, घर में सुकून हो, और खुशी हो तो फिर एक प्राइवेट जेट हो, एक कुछ अस्पताल हो, हर साल 2-3 यूरोप ट्रिप्स हो, और वहाँ पे शॉपिंग करने और कराने के लिए पैसा हो. उसने कहा सर ये सब नहीं सर, आज से 20 साल बाद क्या नहीं होना चाहिए. मैंने कहा इस क्वेश्चन का आंसर मैं कल ढूंढ के बताऊंगा. आई विल फाइंड आउट द आंसर, आई विल कम बैक. आई वेंट बैक एंड आई कॉल्ड अप ऑल माई फ्रेंड्स. सिंस मेरा नाम अपूर्व मेहरा है, मेरे फ्रेंड मुझे मेहरा बोलते हैं, तो सबने अच्छी अच्छी गालियाँ दे के फ़ोन रख दिया. ये क्या बकवास है, तेरे ऐसा ही कोई तेरे को मिल गया होगा, इसे कर्मा कहते हैं. Then I called up my teachers, I called up Dr. Thamim. So Dr. Thamim ने बोला बेटा, these questions, not every question of a student is supposed to be answered. You know, growth is dependent upon ignoring more than accepting. मैंने कहा सर ये नहीं सुनेगा वो पहली रो में बैठता है. पहली रो वाले अलग होते हैं, जानते हो ना, अलग होते हैं, मुझे डिफरेंटली. वो क्लास में क्वेश्चन भी पूछते हैं. हमारे ऐसे तो सीट के नीचे घुसते हैं, अगर टीचर हमारी तरफ देखे तो घबराहट होनी शुरू होती है. हमें टीचर दिल्ली पुलिस जैसा लगता है, पुलिस वाला के दिखते ना अजीब सा लगता है. तो वो अलग होते हैं. फर्स्ट रो वाले बड़े काम है, बड़ा बिल्कुल रिलैक्स हैं. यहाँ बैठे जैनब के क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, आंसर भी कर रहे हैं. नो, भगवान भला करे तुम्हारा. मैंने कहा ही कम बैक टू मी. सो आई कॉल्ड अप माई डैड. आई सेड डैड इज अ क्वेश्चन आस्क्ड, और हम दोनों की इज्जत का सवाल है. हमारा सरनेम सेम है पापा. वो कल हमसे पूछेगा मुझसे कि आज से 30 साल बाद मेरी लाइफ में क्या नहीं होना चाहिए, राइट? सो पापा ने बोला कि आई विल गिव यू एन आंसर टुमारो मॉर्निंग. नेक्स्ट मॉर्निंग आई वाज वॉकिंग सो towards the lecture. The class always starts at 8 a.m. in the morning. So I was entering, so I got a call from dad. So पापा ने आंसर बोला कि आज से 30 साल बाद, 20 साल बाद ये अफसोस नहीं होना चाहिए, राइट? कि एक बंदा 22 जून 2026 को ग्रेटर नोएडा के कोने में प्लॉट नंबर 6 नॉलेज पार्क 1 में फर्स्ट फ्लोर के ऑडिटोरियम में दोपहर को लंच के बाद हमारी आंखों में आंखें डाल के बोल रहा था कि जो मौका मिला है वो सबको नहीं मिलता. ये आइसक्रीम पार्लर्स, ये मूवीज, ये शोज, ये क्रिकेट मैचेस, ये 20 साल बाद भी होंगे, बट अगर नहीं होगा तो ये मौका. काश हम उसकी बात सुन लेते, काश हम समझ जाते कि वो अपनी लाइफ की समरी हमारे सामने रख रहा था, तो आज हम वो होते जो हम बनना चाहते थे. काश उस दिन हम ये सुन लेते, राइट? तो मुझे प्रशांत ने बोला कि सर गारंटी है क्या, राइट? सो मैंने कहा प्रशांत, लाइफ इज नॉट रन ऑन गारंटी, इट्स रन ऑन प्रोबेबिलिटी. गारंटी तो कल सुबह की किसी की नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी पे होती है. और प्रोबेबिलिटी तो पक्का है कि अगर एक बंदा तमीज से सिर नीचे रख के सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई करेगा, देयर वुड बी डेज व्हेन ही विल बी डाउन, बट ही विल नेवर बी आउट. अगर पूरी दुनिया उसको रूल आउट कर दे, वो दुनिया को प्रूव करके दिखाएगा कि तुम्हारे रूल आउट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो फिर जेन्युइनली यू कैन चेंज एवरीथिंग. सो इसकी सेकेंड लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है. तेरी किस्मत का लिखा तेरे तो कोई खो नहीं सकता. द फर्स्ट लाइन सेज वॉट एवर योर डेस्टिनी यू विल मीट इट. ऐसे नहीं होता कि मिल जाएगा. ऊपर वाला भी बड़ा ट्रिकी है कि अगर तेरे को कुछ चाहिए ना तो उसके लिए भी तुझे अपनी मेहनत करनी पड़ेगी. तो उसकी सेकेंड लाइन है, तू श्रम करा चल बंदे. सो वो भी करने के लिए आपको 13 से 14 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी. बट देन हो सकता है किसी ने आपके लिए कोई ब्रांच लिखी हो और आपको वो ना चाहिए हो, कोई और कॉलेज लिखा हो आपको नहीं चाहिए, तो उसमें लिखा होता है डिनाई द गिवन, डिफाई द गिवन. तो फिर आप बोलो चलो 14 घंटे में मुझे वो मिलेगा जो मेरी किस्मत है, मैं 16-18 घंटे भी मेहनत करने को तैयार हूँ, तो क्या मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूँ? तो इसका आंसर है ऑफ कोर्स यस. और उसको बदलने की एक ही की है, अनटायरिंग एफर्ट. यू शुड बी द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन यू नो. अगर आपको अपने से ज़्यादा मेहनती कोई इंसान दिख रहा है तो हिंदुस्तान में ऐसे 5,000 लोग जरूर होंगे जो ज़रूरी नहीं है इस कैंपस में हो. उस दिन जब रण होगा, जब लड़ाई होगी, वो तुम्हें
पीट पीट के फेंकेंगे, फेंक फेंक के पीटेंगे, और उस दिन कोई मर्सी नहीं होगी। एंट्रेंस में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा दिल कितना साफ है, तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुम्हारे बाप के अकाउंट में कितना पैसा है, तुम किस कॉलेज से आए हो, तुम्हारी कितनी डिस्टिंक्शन है, तुम्हारे इतिहास में MBBS में कितने स्कोर हैं, तुमने कितनी पढ़ाई करी है। एंट्रेंस में डिपेंड करता है कि लास्ट 6 महीने, स्पेसिफिकली लास्ट 6 हफ्ते, सबसे ज़्यादा तमीज़ से किसने पढ़ाई करी है और कौन लड़ा है। और उसके अंदर नंबर ऑफ आवर्स एंड हाई यील्ड पढ़ाई किसने करी है। किताब के सामने बैठने को पढ़ाई नहीं कहा जाता। MCQ ओरिएंटेड स्टडी टू गेट द राइट आंसर बाय रिफ्यूजिंग द रॉन्ग वंस को पढ़ाई कहा जाता है। किसने मेहनत करी है, किसने ध्यान दिया, और उसमें जो ठीक है, ही कैन डिफाई द गिवन, ही वैन डिनाई द गिवन, एंड देन द लास्ट लाइन, फिर उसकी मेहर होगी, राइट, और वो चाहेगा जो तुम्हारा हो नहीं सकता वो भी तुम्हें ले, तो उसकी मेहर हो तो तुम्हें वो भी मिल जाए, तुम्हारा हो नहीं सकता। सो इफ यू आर रेडी टू फाइट, तो ऊपर वाला भी नीचे आके, राइट, तुम्हारी किस्मत फिर से लिखेगा। बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू वैल्यू एवरी मिनट दैट यू हैव, राइट। I was at a function yesterday evening, right, Beto? And somehow I met students whom I taught at 2010-11, और उनके बच्चे भी अब अलग अलग स्कूल्स में पढ़ रहे हैं हमारे बच्चों के साथ, so I was very happy. तो वहाँ पे obviously wherever you go, she is somebody who's always discussed. You know, आप कहीं नहीं हो तो भी आपके बारे में बात हो रही है, उसे नाम कहते हैं। आप समझ रहे हो, आपके पीछे से भी बात हो रही है, इस बात पे इसके लिए ताली बजा दो। तो ये जो मैं तुम्हें बताया ना कि हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हारे निशान मिल गए हैं, इसी की सब्सिक्वेंट लाइन है, राइट। देयर आर 2 words which I always tell her about her in every boot camp about Zaina which I speak, राइट। एक वर्ड होता है जिसे बोलते हैं मुख्तसर, विच मीन्स वेरी स्मॉल, और दूसरा वर्ड होता है तबील, विच मीन्स जाइंट, इलेबोरेट, वेल स्प्रेड। तो सचिन लेमाय ने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली है, उसने बोला, उसने, तेरा नाम कितना है मुख्तसर, मीन्स योर नेम इज सच स्मॉल ज़ैनब। तेरा जिक्र कितना तबील है, मीन्स उसका जिक्र, उसके बारे में फेम इतना ज़्यादा है कि दुनिया में हर जगह फैला हुआ है। तो तेरा नाम कितना है मुख्तसर, तेरा जिक्र कितना तबील है। ओवर टू यू ज़ैनब, ऑल द बेस्ट, गुड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, एंड सी यू डे आफ्टर। थैंक यू वेरी मच।